The factors which are responsible for the development of girth. If there is any malformation or any deformity in that, that will result in the Garbhvyapat. We discussed all those things in Sharangdar Samhita, Purvakhand, in 7th chapter. 8 kind of Garbhvyapat are discussed. Upvishta, Nagodar, Makkal, Murgar, Vishkam, Gurgar, Jadayu Dosh, and Garbhat. All these are the 8 kinds of Garbhvyapat as per the Sharangdar Samhita. And different acharya discussed about the different kinds of Garbhvyapat. And the fixed number is not there in between different acharyas. And modern terms, basically it is related to the abortion or any retardation in the growth, intrauterine death, or the obstructed labor. But the obstructed labor basically go to the mood topic of the Ayurveda. And above 3 and specifically abortion and IUD goes under the Garbhvyapat. And what is Garbhstrav and Garbhat? It is the point of differentiation. After the 4th month, that is Achaturtat Tatomasat Prastravet Garbhvichuti Tata Sthir Sharirasya Patha Pancham Shashti. So 4th month tak, if there is in loss of fetus, then it is Garbhstrav. And in the 5th and 6th month, it is Garbhpat. And after the 6th month, as the fetus is formed, so it may goes under the IUD kind of that body is completely formed. So up to the 4th month, it is Garbhstrav, and in the 5th, 6th month, loss of the fetus is Garbhpat. And the reasons are approximately same by the different acharyas, and the shlokash is quite different. We have discussed all these things in the last class. As I said, the factors, those are responsible for the development of the fetus. If there is deformity in that, then it may result in the Garbhat, and these are the Upghatkar Bhav. And in short, Shlokansh Pada Sushrit Nidayan Sthan, that is Krimi Vat Abhighat. So Krimi is the source of infection. In modern also, it is the infection is one of the cause for the loss of the fetus. Vat Dosh, Adho Vayu, Adho Sthan is the Vat Sthan. और वात में ही डिस्टर्बेंस होता है, वही डिलीवरी के लिए भी कॉज होता है वात. तो अगर वात में डिस्टर्बेंस है तो दैट मे आल्सो रिजल्ट इन द गर्भपात और गर्भस्राव. और इसीलिए कहते हैं कि प्री कंसेप्शनल में वस्ती देना चाहिए कि वात आपकी रेगुलेटेड रहे, कि आगे की प्रेगनेंसी भी अच्छे से चले. और इन 8th and 9th month of the protocol as per the Ayurveda, vasti is indicated. So Krimi Vat and Abhighat. So Abhighat is any kind of injury, and it may be the physical or it may be the mental. So Krimi Vat Abhighat is to Tadev Upadotam Phalam. जिस प्रकार किसी फल को गिराने के लिए ये तीनों कारण होते हैं, सिमिलरली गर्भ की विच्युति के लिए भी यही तीनों कारण होते हैं. तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. एंड सिमिलरली कि एक्सेसिव कोइटस और ट्रैवलिंग with jerks, running injury weapons, sharp, grief, bitter food, all these things are the cause for the गर्भपात. मानस अगंतुर अभितापर उपतापे प्रपीड़िता गर्भ व्यापदो कुक्षो व्याधि भी अभिष्य प्रपीड़िता. कि किसी भी प्रकार का उपताप, मानसिक या आगंतुर, both are responsible for the गर्भपात. And the निदान. Abnormalities in the factors responsible for the proper growth and development of fetus can cause IUD or preterm labor. तो जो भी फैक्टर्स उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि षड भाव माने गए हैं आयुर्वेद में, हमारे 6 भाव माने गए, मात्रज, पित्तज, आत्मज, सत्वज, सात्मज एंड रसज. तो मेटरनल फैक्टर्स, अगर मेटरनल साइड के जीन्स एंड में या पेटर्नल साइड के जीन से कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, तो दैट मे रिजल्ट इन द गर्भस्राव और गर्भपात. एंड आत्मज, आत्मा का कोई दोष है, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में आत्मा का कारण माना गया, तो पूर्व कर्मज अगर कोई कॉजेज हैं तो दैट मे रिजल्ट इन द गर्भस्राव और गर्भपात. एंड सत्व, दैट इज वही कि एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा. तो मात्रज, पित्तज, आत्मज, सत्वज, सात्मज
कि आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है, साथ में है कि नहीं वो क्षेत्र या वो रीजन एंड एवरीथिंग। तो अगर साथ में भी कहीं कुछ डिस्टरबेंस आता है तो दैट मे रिजल्ट इन द गर्भपात एंड रिसर्च is related to the nutrient value, you can say. So any of the nutrient deficiency or abnormalities can result in the गर्भस्राव or गर्भपात. तो abnormalities in the factors responsible for the proper growth and development of fetus, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनमें ही कुछ एबनॉर्मेलिटीज होती हैं दैट कैन कॉज आईयूडी और प्रीटर्म लेबर एंड आफ्टर द 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंगर गिव, ये सब भाव हैं या सिचुएशंस हैं जिनको कि अवॉइड करना चाहिए। तो अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एंगर ग्रीव जेलसी फियर एक्सेसिव कोइटस एक्सरसाइजेस, व्यायाम इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर गर्भिणी। बट देयर इज समटाइम कंफ्यूजन कि योग एंड व्यायाम, तो एग्रेसिव व्यायाम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड योग जो है अष्टांग योग होता है और उसमें भी यम नियम तो करने ही चाहिए। एंड आसन पार्ट में आते हैं तो सम ऑफ द आसनास इन जेंटल फॉर्म कैन बी डन, देन प्राणायाम शुड बी डन एंड प्रत्याहार और धारणा ध्यान समाधि टिपिकली नहीं करनी चाहिए। इन शॉर्ट मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो देयर इज डिफरेंस, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक्सरसाइज नहीं करनी तो आप योग भी मना कर रहे हो। विद द प्रॉपर गाइडेंस योग कैन बी परफॉर्म। सो एंगर लीव जेलसी फियर एक्सेसिव कोइटस एक्सरसाइज इरिटेशन सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस एंड सिटिंग एंड स्टैंडिंग और स्लीपिंग ऑन अनइवन प्लेसेस, कि किसी भी समतल स्थान नहीं हो वहां पे लंबे समय तक बैठना खड़े रहना या सोना, ये आपके पोस्चर को डिस्टर्ब करते हुए एक एबनॉर्मलिटी डेवलप करेगा। तो एबनॉर्मल पोस्चर से ही गर्भस्राव एंड गर्भपात कैन बी डन एंड सप्रेशन ऑफ थर्स्ट एंड हंगर। धारणीय वेग को धारण करना है, अधारणीय वेग को धारण नहीं करना है, ये एक पूरा अध्याय है। सो जब नॉर्मल में ही मना किया गया है तो गर्भिणी में तो बिल्कुल ही इट इज कैन नॉट बी डन। यूज ऑफ स्टेल फूड एंड ब्लीडिंग पर वजाइना, दीज आर द निदान ऑफ दिस गर्भस्राव and bleeding per vagina is also the symptom of that. And according to the Sushrut, etiology of Murgarb and Garbhasrav and Garbhapat are the same. तो सुश्रुत जी ने मूलगर्भ एंड गर्भस्राव की कारण एक ही बताए। मूलगर्भ दैट इज ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और गर्भस्राव इज रिलेटेड टू अबॉर्शन, बट इटियोलॉजी कारण दोनों के सेम है एज पर सुश्रुत। सो व्हाट आर दीस, दैट इज क्वाइटस ट्रैवलिंग राइडिंग ऑन हॉर्स। इसके कारण जो प्रेजेंटेशन मूलगर्भ यू कैन से दैट इज प्रेजेंटेशन इज नॉट नॉर्मल, abnormal presentation is there. So due to these factors like coitus, traveling, riding on horse, falling from height, ट्रॉमा हो गया किसी चीज का, नेचुरल अर्जेस है उसको सप्रेशन करते करते बात विकृत हो जाती है। तो पीली बात अभी कहा था, इसको 3 रीजन हमने अभी प्रीवियस श्लोक में देखा था। हॉट और पंजन डाइट, किसी भी प्रकार से डीफ है, शोक है, डायरिया है, यहाँ तो क्षार का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, वमन विरेचन कराए जा रहे हैं, emetics and purgatives, that is indigestion and use of abortifacient drugs। तो ये सब कारण जो है ये मूल गर्भ के भी कारण हो जाते हैं और गर्भस्राव के भी। सो दीज आर द etiology एंड सामान्य लक्षण में तत्पूर्व होता है कारण प्रतिशती गर्भे गर्भाशय कटिवंशन अस्थि शूलानि रक्त दर्शनम च। तो जो पेल्विक एरिया है गर्भाशय एंड बैक एक कटिवंशन और वस्ती में शूल होगा, मीन्स पेनफुल पेन होगा, प्रिकिंग पेन, और रक्त दर्शन दैट इज ब्लीडिंग पर वजाइना। तो ये लक्षण दिखेंगे इन द केस ऑफ गर्भस्राव एंड गर्भपात। नाउ कम टू द अबॉर्शन, इसका भी हम लोग ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। दैट इज 24 वीक्स के पहले या 500 ग्राम से कम का है तो दैट इज अबॉर्शन, और आफ्टर दैट इट इज प्रीमेच्योर लेबर। एज वी डिस्कस ना कि वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड लाइक ना जाता है। तो अब तो इतना साइंस डेवलप हो चुका है, तो विद द हेल्प ऑफ वेंटिलेटर्स या नीकू पीकू ये सारी अवेलेबिलिटीज है, तो इनके सपोर्ट से वो मतलब नॉट फुली फॉर्म बट अबाउट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म्ड जो फीटर्स है, तो उसको सपोर्ट देके
एक लाइफ दी जा सकती है इन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इवन, तो वो प्री मैच्योर लेबर के में आएगा अगर 24 वीक्स के बाद का है या 500 ग्राम से ज्यादा वेट है। बट अगर 24 वीक्स से कम का फीटस है या वेट उसका 500 ग्राम से कम का है, दैट इट कम्स अंडर द अबॉर्शन। सो अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20, 22 और 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, और जो उसमें मटेरियल निकलता है दैट इज अबॉर्टस। सो व्हाट इज द डिफरेंस between the abortion or the spontaneous abortion? So abortion can be done willingly, and if it is done without any medical or mechanical means to empty the uterus, then it is spontaneous abortion, और spontaneous abortion को ही आम बोलचाल की भाषा में miscarriage भी कहते हैं। तो abortion की classification, it may be spontaneous or it may be induced। spontaneous की जैसा हमने अभी पढ़ा कि वो खुद से हो रहा है, उसमें कुछ भी externally willingly नहीं किया जा रहा है। induced abortion में आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की इन स्पेशल कंडीशंस में लीगल है ये करना और मेडिकल सपोर्ट से किया जाता है। और इलीगल अबॉर्शंस जो होते हैं कि वो लीगल नहीं है, बट ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट लोग कराते हैं। सो इन द केस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इट मे बी आइसोलेटेड और रिकरेंट। आइसोलेटेड मीन्स वंस हुआ, एंड रिकरेंट बार बार जो अबॉर्शन हुआ दैट इज रिकरेंट। आइसोलेटेड अबॉर्शन में थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, complete abortion, incomplete, missed and septic। threatened that is कि इसका थ्रेट है, खतरा है, मीन्स पूरा अबॉर्शन नहीं हुआ है, इट इज वेरी क्लोज टू द अबॉर्शन बट इट कैन बी रिकवर। एंड इनएविटेबल, अब उसको रोका नहीं जा सकता, वो अबॉर्शन हो ही गया। एंड कंप्लीट में जो अबॉर्टस होता है वो कम्प्लीटली आउट ऑफ द यूट्रस होता है। एंड इनकम्प्लीट, उसके कुछ पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं। मिस्ड अबॉर्शन की अबॉर्शन होके अंदर पड़ा हुआ, उसके साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आए और वो लेट आते हैं, और कई बार इतना लेट आते हैं कि वो सेप्सिस हो जाती है, कि उसमें पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है। सो दीज आर द classification, or you can say the stages of the abortion। And what are the etiology or factors? So it's the fetal factors, वो फीटस में ही कहीं कुछ कमी है उसके कारण हो रहा है, या मैटरनल फैक्टर्स के कारण, कि मैटरनल से तो आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है, नरिशमेंट भी मिलना है, और उनके जीन्स भी गए। पैटर्नल स्पर्म डिफेक्ट्स कुछ आए उसके कारण हुआ, या अननोन कॉजेज भी कई बार होते हैं, या किसी ट्रॉमा के कारण। तो ये हमारे देखिए आयुर्वेद में भी यही कारण बताया गया, तीन बात अभी कहते हैं इसको। एंड सो अननोन यू कैन गो टू द वातज की बात डिस्टर्बेंस में कई बार रीजंस नहीं भी पता होते हैं, या जो भी भाव उसके दर्द के बनने में कारण होते हैं, तो उनकी असम्यकता के कारण अबॉर्शंस हो जाते हैं। तो ये मैटरनल एंड पैटर्नल फैक्टर्स, ये रीजंस हैं, या ट्रॉमा हो गया, विघात। तो ये चीजें अगर देखी जाए आयुर्वेद मतानुसार या मॉडर्न के अकॉर्डिंग, तो दीज आर ऑलमोस्ट सेम, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज समवॉट डिफरेंट। तो फीटल फैक्टर्स या जेनेटिक फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज हो गई, like autosomal trisomy, Down syndrome is most of the common, trisomy of 16 chromosome, polyploidy and monosomy। बॉडी जो है नेचर है कि सब सही चीजों को सपोर्ट करती है, तो कहीं भी कुछ डिफॉर्मिटी है तो वो बच्चा आगे जाके सफर करे, तो दैट इज नॉट विलिंग टू कंटिन्यू दैट प्रेगनेंसी, एंड देयर इज चांसेस ऑफ अबॉर्शन इन मोस्ट ऑफ द टाइम इफ देयर इज एनी डिफेक्ट। हाँ, कई बार सही में भी अबॉर्शन के चांसेस बनते हैं, वहां हमें कंट्रोल करना है। बट हमें अगर अबॉर्शन की हिस्ट्री है बार बार, तो उसको हमें क्रॉस चेक कर लेना है कि व्हाट इज द कॉज। कहीं कुछ ऐसे कॉजेस तो नहीं है कि वो आगे जाके वो बच्चा या पूरी फैमिली ही सफर करे। सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के केसेस में भी वो नेचर उसको एक्सपेल आउट कर देना चाहती है। ग्रॉस कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, ब्लाइटेड ओवम, नॉट्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ट्विन प्रेगनेंसी। सो जहाँ सपोर्ट नहीं कर पा रहा यूट्रस उस फीटस को, तो देयर द चांसेस ऑफ अबॉर्शन इंक्रीजेस। नाउ एंडोक्राइन फैक्टर्स, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ये एंडोक्राइन
जो है हार्मोन्स जो है उनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि फंक्शन सही से चलता रहे. एंड देन देयर इज डिपेंडेंसी ऑफ हु लाइफ इज देयर, so it is much more important. So hypothyroidism या hyperthyroidism दोनों ही cases में it may result in the abortions, or it may be the cause of the infertility even, diabetes mellitus and inadequate corpus luteum. तो वो corpus luteum जो है प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, तो वो inadequate है तो प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर पाएगा. नाउ सर्वाइको यूटेरिन फैक्टर्स की सर्विक्स ही इनकॉम्पिटेंट है, ये बेसिकली सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो किसी तरह प्रेगनेंसी चली जाती है, कंटिन्यू हो जाती है, बट इन सेकेंड ट्राइमेस्टर वो सर्विक्स पे प्रेशर पड़ते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के कारण, देयर आर चांसेस ऑफ अबॉर्शन. एंड कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस कि कई बार दो यूट्रस होते हैं, बाइकॉन्वेट यूट्रस, तो उसमें स्पेस कम मिलता है, मैनी ऑफ द चांसेस आर देयर, और भी कुछ मेलफॉर्मेशंस है यूट्रस में तो वो सपोर्ट नहीं कर पा रही प्रेगनेंसी को, या यूट्रस में ट्यूमर है या फाइब्रॉइड है तो वो फिर और एग्रवेट हो जाते हैं, या उनके और सिम्टम्स के कारण अ, वो प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर सकता यूट्रस. रेट्रोवर्टेड यूट्रस या Asherman syndrome, these are the cervico-uterine factors that may result in abortions. या इन्फेक्शन के कारण तो टॉर्च इज द मोस्ट ऑफ द कॉमन इन्फेक्शन. अगर इनफर्टिलिटी प्रोफाइल में भी देखते हैं या अर्ली प्रेगनेंसी में भी, तो टॉर्च टेस्ट या सिफिलिस टेस्ट ये सब इन्वेस्टिगेशंस देखे जाते हैं. सो टॉर्च इज द कॉम्बिनेशन ऑफ four infections, that is toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, and herpes simplex. And other than that, malarial and other protozoal infections may cause in the abortion. And here it is not indicated syphilis, and specifically in the first trimester, it may cause the abortion. अब immunological factors, ये यहाँ पे लाइक क्या होता है ना कि अपनी बॉडी के मीन्स ग्रोइंग फीटस को ही वो एक्सटर्नल पार्ट समझ लेते हैं और इम्यूनिटी बढ़ के उसको अबॉर्शन कराते हैं. लेकिन एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम्स, तो इट टेक fetus as an antigen and antibodies are generated for the abortions. So, antiphospholipid antibody syndrome, lupus, anticoagulant, human leukocyte antigen, and blood group incompatibility. And basically RH incompatibility की मदर अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव हस्बैंड से, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप आ गया, तो दैट में रिजल्ट इन द अबॉर्शन. तो उसके लिए एंटी डी वैक्सीन दी जाती है, इंजेक्शन दिए जाते हैं, या एवीओ इनकम्पैटिबिलिटी भी हो जाती है कई बार. सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप. एंड जनरली फर्स्ट प्रेगनेंसी तो किसी तरह कंटिन्यू हो जाती है, लेटर प्रेगनेंसीज में सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में इनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा आती है, लाइक ऑफ द RH incompatibility. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइक स्मोकिंग, एक्टिव या पैसिव एनी काइंड ऑफ स्मोकिंग इज इन्वॉल्व, अल्कोहल इन यूज, इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं उसमें ही प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर गई, तो इट दैट मे सफर इन द लेटर. और कई बार कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं एनेस्थेटिक गैसेस के कारण, लेड, रेडिएशंस, ऑल दीज मे कॉज द अबॉर्शन इन एनी प्रेग्नेंट फीमेल. नाउ ट्रॉमा, तो डायरेक्टली कोई इंजरी हुई आपके पेल्विक रीजन में, एब्डोमिनल रीजन में, या जर्नी के कारण जर्क्स के थ्रू, या पर वैजाइनल एग्जामिनेशन ससेप्टेबल इंजरी इंडिविजुअल्स में. पीवी से हर किसी में अबॉर्शन नहीं होता, बट इन सम पीपल आर ससेप्टेबल, तो उससे काफी वेसोवेगल कॉन्ट्रैक्शंस एंड मनी अदर स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस आर देयर, या किसी साइकिक शॉक के कारण भी एक ट्रॉमा हो सकता है. तो जनरली जब तक बहुत नेसेसरी नहीं हो या लेटर थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के पहले, पीवी शुड बी अवॉइडेड जनरली, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे मीन्स एंड डिवाइसेस आ गए हैं, रेडियोलॉजिकल एंड अदर डिवाइसेस, की पीवी इज नॉट ओनली ऑप्शन. पहले के टाइम पे था कि हमारे पास ऑप्शंस कम थे, तो पीवी से ही हम एग्जामिन करके फाइंडिंग्स करते थे. तो एक तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ता है, एंड इन ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं. हाँ,
दो इट इज रेयर केसेस बट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो बढ़ता है, एंड जब तक जरूरी नहीं है पीवी शुड बी अवॉइडेड इन द प्रेगनेंसी केसेस, स्पेशली अगर आप का फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो अवॉइड ही करना चाहिए जब तक जरूरी ना हो तो। आप पीएस कर लो, पर स्पेक्युलम देख लो, और उसके बाद अगर आपको जरूरी लगता है तो गो फॉर द पीवी। नाउ iatrogenic लाइक amniocentesis, podocentesis, CVS, cardiovascular sepsis, radiations, quinine, warfarin, ergot derivatives, prostaglandin एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। जो ड्रग इंड्यूस्ड जो कॉजेज हैं, तो उनमें ये सब अबॉर्शन के लिए। एंड डेफिशिएंसी के कॉजेज में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन। अगर प्लानिंग है कपल फॉर द कंसेप्शन, तो पहले से ही फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं कि आगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आए। एंड along with that vitamin A and vitamin E deficiency may cause abortion। एंड फोलिक एसिड में कि कई बार एनेंसेफेली या कॉर्ड डिफेक्ट्स, ऐसे कई सारे डिफेक्ट्स आ जाते हैं कि अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन नहीं होता है तो आपको एमटीपीज करानी ही पड़ जाती है। सो दैट causes must be considered in the case, in the paternal factor, if the sperm is defective, so the quality of the fetus is not good, that may cause the abortion. Now come to the spontaneous abortion. So what are the basically susceptible causes? That advanced maternal age, if it is primigravida and above the 30 years of age, that is prone, and alcohol use, anesthetic gas use like nitrous oxide, use of caffeine in heavy quantity. So coffee is generally avoided in pregnancy. मतलब थोड़ा बहुत ले सकते हैं, but not like the addicted ones. And chronic maternal diseases, कई डिजीज इंड्यूस करती है अबॉर्शन को। डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है, सीलियक डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, एंड ऑटो इम्यून में भी पर्टिकुलरली एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एंड सिगरेट स्मोकिंग, either active or passive, use of cocaine, conception within 3 to 6 months after delivery. So body is not ready for that, and various changes are there. And intrauterine devices, maternal infections like bacterial vaginosis, mycoplasmosis, herpes simplex virus, toxoplasmosis, listeriosis, chlamydia, human immunodeficiency virus, syphilis, parvovirus, B19, मलेरिया, गोनोरिया, रुबेला, साइटोमेगालोवायरस, तो ये सब इन्फेक्शन के कारण भी अबॉर्शन होने की चांसेस हैं। और मीजोप्रोस्टल इज द abortifacient, you can say, and retinoid, methotrexate used in the leprosy, and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Some of the NSAIDs, not all the times, but it may cause abortion. And multiple previous elective abortion, कि कई बार abortion electively करवाए गए, that was not spontaneous. So नो तो कि एक आदत पड़ जाती है, कहते हैं ना, तो उस यूट्रस को आदत पड़ गई कि इसका तो अबॉर्शन करना ही है कहीं लोग। एंड प्रीवियस स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भी, इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, then you must take the proper history before the conception and treat the cause if it can be. And various toxins like arsenic, lead, ethylene glycol, carbon disulfide, polyurethane, heavy metals, organic solvents, and uterine abnormalities like congenital anomalies, additions, leiomyoma। तो यूट्रस में कोई कंजेनाइटल एनॉमली ऑलरेडी है या एडिशंस हैं कि उस स्पेस कम बनती है, एंड फॉर द इम्प्लांटेशन एंड proper growth it is very difficult, and is there any leiomyoma? And here I one thing I want to add कि अगर previous spontaneous abortion की हिस्ट्री है तो गर्भ स्थापक गण, जो हमारे आचार्यों ने कहा है, तो गर्भ स्थापक गण से अगर आपके पास कंसीव करने के पहले ही कपल आता है तो यू कैन गिव दैट। और मासानुमासिक चिकित्सा में भी जो ड्रग्स दी गई हैं तो उसको भी हम ऐड करके वी कैन सपोर्ट द प्रेगनेंसी इन द केस ऑफ spontaneous abortions।
if there is any history. And what is the pathology? Hemorrhage is into the deciduobacillus followed by necrosis of tissues adjacent to the bleeding. तो सबसे पहले deciduobacillus में hemorrhage शुरू होता है, उसके बाद adjacent tissues की necrosis होती है, जहाँ से bleeding होती है इसके आसपास की, कि वो कंट्रोल करने के लिए नेक्रोज होने थे. If early the ovum detaches, stimulating uterine contraction that results in its ovulation. तो अगर अर्ली स्टेज में अबॉर्शन हो रहा है तो ओवम डिटैच हो जाता है इम्प्लांटेशन साइट से. तो फिर जैसे कि ओव्यूलेशन के टाइम यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उस ओवम को बाहर निकालने के लिए, तो इस टाइम पे भी कॉन्ट्रैक्शन होकर वो बाहर निकल जाता है. जेस्टेशनल sac is open, fluid surrounding a small macerated fetus, and alternatively no fetus is visible, that is blighted ovum. कि मीन्स कई बार पेशेंट्स आते हैं लाइक कि हाँ कुछ दिन डिले होके पीरियड आया, थोड़ा ज्यादा आया, इन बिटवीन उन्होंने यूपीटी भी किया था तो दैट 2 लाइन दिखी. सो यू कैन कोरिलेट विद दिस कंडीशन कि प्रेगनेंसी मीन्स फर्टिलाइजेशन हुआ, कई बार इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाता है, उसी टाइम पे ही वो आउट हो जाता है जाइगोट. एंड समटाइम्स द इम्प्लांटेशन होके भी इट इज पुअर इम्प्लांटेशन एंड that detaches from the walls and uterine contraction के थ्रू वो बाहर हो जाता है एज एन अबॉर्टस. तो अब स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की कैटेगरीज अगर देखें तो थ्रेटेंड अबॉर्शन की सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं अबॉर्शन की, बस वो अंदर है तो इसको हम लोग फिर भी रिकवर कर सकते हैं. बट इनएविटेबल अबॉर्शन इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टॉप दैट अबॉर्शन. कंप्लीट अबॉर्शन में सारा अबॉर्टस बाहर निकल चुका है, इनकम्प्लीट में उसके कुछ पार्ट्स बाकी हैं. सब अबॉर्शन में if that fetus is not alive but it is missed, वो अंदर पड़ा हुआ है. and recurrent abortion में बार बार हो रहा है. so these are the categorization. now the spontaneous abortion की definitions जैसे कि अभी हम लोग ने जो डिस्कस किया. so in the form of definition, complete abortion, all the products of conception have been passed without the need for the surgical or medical intervention. कि कुछ भी मेडिसिन के थ्रू या डीएनसी के थ्रू हमें निकालना नहीं पड़ा, सब अबॉर्टस जो था वो ऑटोमेटिकली बाय इटसेल्फ it is passed out. And incomplete abortion, some but not all of the products of conception have been passed, and retained products may be the part of the fetus, placenta or membranes. तो जब भी अबॉर्शन की हिस्ट्री लेके फीमेल आती है तो उसका अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए. एंड इफ देयर इज इट इज इनकम्प्लीट अबॉर्शन तो उसकी एज सून एज मीजोप्लास्टी वगैरह देके अगर अबॉर्शन का कंप्लीट हो जाता है, ये तो डीएनसी करके करना चाहिए, क्योंकि वो जो कंसेप्टस रहता है वो कई बार फिर उसको एज एन एक्सटर्नल मटेरियल लेती है बॉडी, और फिर वो बहुत ही सीवियर कंडीशन भी हो जाती है, एकदम हैवी ब्लीडिंग में, एंड कई बार शॉक में भी पेशेंट चला जाता है. सो अगर वो आपके पास आया है फॉलोअप में आफ्टर एन अबॉर्शन, सो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट. इट इज इफ इट इज complete and it's okay, and if it is incomplete we have to treat or refer as per our situation, और मतलब कि जितनी भी आपके पास फैसिलिटी उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो. नाउ inevitable abortion, the cervix has dilated but the products of conception have not been expelled. कि सर्विक्स भी डायलेट हो गया पर पूरी तरह से प्रोडक्ट उसके एक्सपेल आउट नहीं हुए हैं. And in the missed abortion, a pregnancy in which there is a fetal demise, usually for a number of weeks, but no uterine activity to expel the products of conception. कि means fetus बहुत मतलब डिग्रेडेशन की तरफ चला गया है, बट वो सर्विक्स ओपन होना या यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन आना इस तरह की एक्टिविटीज अभी स्टार्ट नहीं हुई है. और इनएविटेबल में सर्विक्स ओपन हो गया, कुछ कॉन्ट्रैक्शंस भी बस स्टार्ट हो जाएंगे तो वो एक्सपेल आउट हो ही जाएगा. सर्विक्स ओपन तक तो उसमें इनएविटेबल में हो ही जाता है. एंड इन रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, 3 or more consecutive pregnancies losses, ये 3 या 3 से ज्यादा प्रेगनेंसी अगर लॉस हो गई देन इट कम्स अंडर द रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन. And in the septic abortion, a spontaneous abortion that is complicated by the intrauterine infection. कि spontaneous abortion हुआ, साथ ही साथ उसमें यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो गया, so it goes under the septic. And the threatened abortion, a pregnancy is complicated by bleeding before 20 weeks of gestation. कि
ब्लीडिंग एंड पेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, 20 वीक से कम का gestation है, then it is threatened abortion. Abortion का खतरा है, you can say threat. Now, threatened abortion, the process of abortion has started but not progressed to state from which the recovery is impossible. As I said, the threat, that is खतरा है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया अबॉर्शन का, बट इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है कि यहाँ से रिकवरी नहीं हो सकती, कि यहाँ से रिकवरी की जा सकती है, तो इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी है. अभी हाँ, यहाँ पे भी हाँ देखेंगे, आना कल आना परसों, नो, देयर obstetrician have to be very active, and bleeding is frequently slight but may persist for days or weeks. तो हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, पर वो कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से चल रही है.